नमस्कार मित्रों, मैं प्रणव झा आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सत्य की यह तासीर है कि उसे थोड़ी देर तक छुपाया जा सकता है, पर वो अंततः सामने आ ही जाता है। बिहार में इसी वर्ष सिर्फ मई माह में हुई मृत्यु के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो बताते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और सरकार इसे संभालने की जगह आंकड़ों को छिपाकर अपनी छवि संवारने में लगी रही। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार सरकार जितनी मौतें बता रही है, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह और दर्दनाक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS द्वारा ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक सामान्यतया अप्रैल और मई में बिहार राज्य में प्रतिवर्ष आमतौर पर जितनी मौतें होती है, इस बार उससे 53,000 ज्यादा मौतें हुई। CRS के अनुसार अप्रैल 2019 में बिहार में 23,537 से ज्यादा मौतें हुई थी। वहीं अप्रैल 2020 में यह आंकड़ा घटकर लगभग 17,000 के करीब हो गया। लेकिन अप्रैल 2021 में यानी उसी माह में एक साल बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 33,000 से ज्यादा हो गई। यही नहीं, मई में तो ये आंकड़ा और भी डरावना है, जहां मई 2019 में बिहार में 24,600 मौतें हुई थी। ठीक एक वर्ष बाद मई 2021 में 68,000 से अधिक मौतें हुई। सरकारी कागजों में बिहार में 1 जनवरी 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोविड से सिर्फ 3,766 मौतें बताई गईं, जबकि CRS के अनुसार इस दौरान प्रदेश में करीब 2,15,000 मौतें हुई हैं। यह संख्या सामान्य समय में होने वाली मौतों से 82,500 अधिक है, यानी सरकार के कोविड मौतों के आंकड़ों से करीब 22 गुना ज्यादा। भारत में आधिकारिक तौर पर 3,90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सांख्यिकीविदों का कहना है कि यह वास्तविक आंकड़ों से बहुत कम है। और ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साझा भी की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सांख्यिकीविदों के अनुसार 3,90,000 की आधिकारिक मृत्यु संख्या महामारी के वास्तविक संख्या से बहुत कम है। Overwhelmed hospitals, people dying on the streets from lack of oxygen, and packed crematoriums. This is a snapshot of the COVID-19 crisis in India. In contrast, just a few months ago, the Prime Minister declared victory against the pandemic. इस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। After that, there were political rallies. मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। April was a key election month, and political parties, including Modi's BJP party, organized events across the West Bengal state. A BJP spokesperson said that no one had anticipated the magnitude of the COVID-19 surge, adding that Modi and other members of his party followed all the safety protocols in place at the time. Right around then, resources to fight the pandemic weren't reinforced or maintained. Everyone essentially thought that COVID was over. By January, hospitals were taking down their COVID-19 wards. Testing centers that had been started last year were also being dismantled. Some of the oxygen plants where they had allocated the budget were never built. And on top of all of this, highly contagious variants that were first identified in the UK and South Africa were circulating in the country, as well as a new variant known as B1617 that originated in India. The 617 in India, it's a wily opponent. The WHO has said preliminary studies indicate that this one may be more contagious than some other variants and has since been detected in more than 40 countries, including the US, UK, and France. This has added urgency to the global vaccination race, which has so far helped cases plummet in some of those countries. So, even as the COVID situation has improved in some parts of the West, the fight against the pandemic across the globe is far from over. A big lesson is just countries can't get complacent. And even if one country is doing well, if another country is not doing well in terms of COVID, that will affect every other country in the world too. Mass gatherings and religious festivals, like this one. And then on April 21st, the country reported a record number of COVID-19 cases in a single day. And those numbers kept growing for several weeks, with many health experts saying real numbers are likely much higher. By May 7th, deaths soared past 4,000. As COVID cases in several Western countries have trended lower, the scale of infection in India and a new variant first reported there have alarmed the rest of the world. If you have a huge country like India that's
deep in its own COVID crisis, right? That means the pandemic is not going to end for the world. Here's how India became the world's COVID hotspot and what that means for the global pandemic. यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन का मानना है कि भारत में मरने वालों की संख्या 10,10,000 से ज्यादा हो सकती है, जो रिपोर्ट की गई संख्या का लगभग 3 गुना है। उदाहरण के लिए बिहार में एक 70 वर्षीय महिला शीला सिंह की घर पर मौत हो गई। कोविड के लिए एक रैपिड एंटीजन परीक्षण पॉजिटिव रहा था और एक फेफड़े के स्कैन में वायरल निमोनिया और कोविड संक्रमण की संभावना का संकेत मिला था, लेकिन शीला सिंह की मौत को भारत के कोविड से होने वाली मौतों में नहीं गिना गया। और सरकार ने भी हलफनामा देकर साफ कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से मरने वालों के लोगों के परिजनों को मुआवजा नहीं दे सकती। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से ये सामने आया कि 31 मार्च 2021 तक कोरोना काल के 9 महीनों में उत्तर प्रदेश में 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है। आपको याद होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मृत शिक्षकों के लिए शिक्षक संघ लड़ता रहा। सरकारी आंकड़ा 3 बता रहा है, जबकि शिक्षकों की मौतों की वास्तविक संख्या 1600 से ऊपर बताई जाती है। यही हाल गुजरात का है, जहां समाचार पत्रों ने खुलासा किया है कि अप्रैल मई के बीच सरकार ने मौत के आंकड़ों को 65,000 कम करके बताया। सरकार का हिसाब तो ये है कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कई लोगों को खाली टीके ही लगवा दिए, तो कहीं एक आदमी को 16 वैक्सीन लग गया। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 555 आधार नंबर पर 2-2, 90 आधार कार्ड पर 3-3 टीके लगवाए गए। जो कभी भोपाल गए नहीं, उनको भी वैक्सीन लग गए। इसलिए देश भर में मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने सही कहा। उन्होंने 30 मई 2021 को लिखा कि कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए नीयत, नीति और निश्चय। महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। आप हमें लिखिएगा कि आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा। आप देखते रहिए INC TV। तब तक के लिए नमस्कार।